Okay. So this is your paper number 13, CC 13, where you will study a special branch of biology or zoology in particular, you can say, which is called ethology. So ethology deals with the study of animal behavior. Okay, because this is derived from the Greek word ethos, which means character. Okay, and logy means the study or the science. Okay, so ethology is the study of animal behavior. Okay, initially ethology was studied by non-professionals and nature lovers, but now it is an established branch of zoology. Okay, so these are the pictures of some famous ethologists. Okay, this one is the bird lover. She is Reena Mathur. She is professor in Rajasthan University. She has done a lot of work in this field, in the study of animal behavior. तो पहले ये नॉन प्रोफेशनल और एनिमल लवर जिनको हॉबी है ये सब लोग देखते थे, स्टडी करते थे, बाद में इसको जूलॉजी के एक स्पेशल ब्रांच के रूप में इंक्लूड कर लिया गया. किसको? इथोलॉजी को. In the last few decades, it had got considerable attention, and now ethologists get ample recognition for their work. आजकल आप लोग देखते हो ये सब डिस्कवरी, नेशनल जियोग्राफिक, प्लैनेट अर्थ, ये सब पर अगर देखोगे तो कुछ प्रोग्राम आपको दिखेगा जहां एनिमल का बिहेवियर आपको दिखा रहा होगा. जैसे कि ब्रीडिंग सीजन में मेटिंग बिहेवियर, फूड कैसे कलेक्ट करता है. ओके, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर आप नोटिस कर सकते हैं. सो इथोलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. So ethology is the basic. Ethology is basically the study of animal behavior. But what is animal behavior? From where does it comes? What is animal behavior? From where the behavior comes? Behavior comes in the response of a stimulus. Okay? जैसे एक्शन का रिएक्शन होता है, वैसे ही इन द रेस्पॉन्स ऑफ ए स्टिमुलस योर बॉडी डज सर्टेन एक्शंस, ईदर वॉलंटरली और इनवॉलंटरली. ओके, सो दिस इज द वे द लिविंग सिस्टम रेस्पॉन्ड्स टू द एनवायरमेंट, बिकॉज एनवायरमेंट is a entity which is constantly changing, and the animal is adjusted in that environment. But if the environment is changed, then how the behavior of that animal will get affected. So those kind of things comes under this ethology. So now we will see later on what are different types of behavioral patterns, what are the branches of this science and the approaches, methods, etc. We will see. So the behavior is an externally recognizable change in the animal or its body which leads to communication to other animals. यानी बिहेवियर जो है, किसी एक एनिमल का बिहेवियर जो है, वो बाहर से दिए गए, बाहर जो एनवायरमेंट में जो चेंज आया, रिकॉग्नाइजेबल चेंज, यानी हल्का छोटा सा मामूली चेंज नहीं, कोई ऐसा चेंज आया जिसको रिकॉग्नाइज कर सके. ओके, सपोज कि गर्मी का सीजन थोड़ा डिले हो गया, या इस बार गर्मी के सीजन में ज्यादा गर्मी पड़ने लग गई,
किसी किसी साल होता है ना ज्यादा गर्मी पड़ गई, किसी किसी साल ठंड के सीजन में ज्यादा ठंड पड़ गया, हर बार ठीक पड़ा, इस साल थोड़ा ज्यादा ठंड पड़ गया। जैसे अभी देखो गर्मी अप्रैल में आने वाला है, भयंकर गर्मी, लू आने वाला है, हीट वेव चला हुआ है, पाकिस्तान पहुंच गया हीट वेव, अप्रैल तक में यहाँ भी पहुंचेगा हीट वेव। तो गर्मी, तो दिस इज अ रिकॉग्नाइजेबल चेंज इन द क्लाइमेट कंडीशन और द एनवायरमेंटल कंडीशन, एंड अकॉर्डिंगली एनिमल रेस्पॉन्ड्स टू दैट चेंज। बिकॉज देख सपोज तो गर्मी, हर साल गर्मी आएगा, इस साल इस महीना में गर्मी, अगले साल भी इसी महीने में गर्मी आएगा, सो ये एक पेरियोडिक चेंज है। सो द एनिमल इज एडजस्टेड कि अगले साल इतने महीने के बाद अब समर सीजन आएगा, सिमिलरली फॉर द विंटर सीजन और एनी अदर काइंड ऑफ थिंग विच इज पेरियोडिकली, बट वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद आएगा, दिस इज श्योर, निश्चित है। लेकिन सपोज करो अगली बार जब आया तो उसमें गर्मी ज्यादा हो गया या ठंडक ज्यादा हो गया, तो वो चेंज हो गया। सो दैट इज द, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज एनिमल बिहेवियर विल ऑल्सो चेंज। ओके, so this is what is behavior. Behavior is coming from the stimulus. Okay, why behavior? Behavior is because of the stimulus, in response of the stimulus, response is generated in your body, and the stimulus is coming from the outside. So because of, and that response is translated into the behavioral pattern or behavioral aspects, you can say, or behavioral events. Okay, so in response of that stimulus, external stimulus, your body gives a response which is called as behavior, and this is in communication to other animal or animals or the surrounding. So this recognizable change may include body postures, facial expressions, vocalizations, changes in the coloration of the animal, release of odor, etc. तो एनवायरमेंट से जो भी स्टिमुलस मिला उस एनिमल को, तो उस एनिमल ने अपना व्यवहार में परिवर्तन किया। सपोज किसी को गंदा गंध मिला तो नाक मुंह सिकोड़ लेगा, कोई अच्छा चीज देखेगा तो चेहरा खिल जाएगा उसका, है ना, कोई गंदा चीज देखेगा तो फेशियल एक्सप्रेशन चेंज होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिमुलस का डिफरेंट डिफरेंट आपका बॉडी पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, वोकलाइजेशन यानी आवाज निकालना, जैसे चिड़िया चहचहा रही है, तो उसमें भी सिग्नल है। फॉर्मेटिंग ऑल्सो, बर्ड साउंड, मेल बर्ड साउंड करके फीमेल बर्ड को अट्रैक्ट करता है। एंड चेंज इन द कलरेशन ऑफ द एनिमल, कैमोफ्लेज, या आप कैमेलियन में देखेंगे, लिजार्ड में देखेंगे, गार्डन लिजार्ड में गिरगिट का रंग बदलता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, बाहर जैसा कलर रहेगा बॉडी कलर भी करेगा। रिलीज ऑफ ऑर्डर, many animals release the odor from the urinogenital tract, okay, opening, and they deposit that odor मतलब वो स्मेल को थ्रू दैट यूरिन दे डिपॉजिट दैट ऑर्डर ऑन द प्लांट्स। आप देखे होंगे सूंघते हुए चलता है ये सब है एनिमल्स, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, ये सब, तो वो ऑर्डर को पकड़ता है। सो दीज आर द वेज, जैसे डॉग है, ये चेंजिंग द बॉडी पोस्चर, मुंह खोल करके भौंक रहा है, तो दिस इज ए वन टाइप ऑफ बिहेवियर। द गोरिल्ला इज इन रेस्टिंग पोजीशन एंड यार्निंग, दिस इज अनदर टाइप ऑफ बिहेवियर। तो इस समय ये क्या किया, ये खा करके आराम से लेटा हुआ है। फेशियल एक्सप्रेशन, suppose if the monkey is interested, then its facial expression will be like this. If it is playful in that time, then it will show the expression like this. If it is excited, then like this. If it is frightened, then like this. So these are different types of facial expression animal shows. These are the facial expression of dog when suspicious, when attracted, when angry, when happy,
वोकलाइजेशन यानी चिड़िया चहचहा रही, यहाँ पर ये चिड़िया के बच्चे चूजे हैं, ये चहचहा रहे हैं, तो ये अभी भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। तो इस वोकलाइजेशन से मदर विल गेट द सिग्नल दैट दे आर हंग्री, तो इसमें आकर के चोंच में दाना डाल देगी। हेयर द मेल इज कॉलिंग द फीमेल फॉर द मेटिंग थ्रू द वोकलाइजेशन, यहाँ पर चुप है। तो दिस इज द चेंज इन द कलरेशन, कलरेशन में भी चेंज हो रहा है। जैसे ऑन सम एनिमल देर आर स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी, like or in the some animal, this is the polar bear, okay, or this is not the polar bear, this is an animal looking like a dog or something, looking, it is looking like a fox, but this animal is matching the color of its body with the background, बैकग्राउंड में भी व्हाइट है और इसका बॉडी का कलर भी व्हाइट हो गया। एंड दिस इज गार्डन लिजार्ड, इसका बॉडी का कलर जो है ग्रीन हो कर लिया। ये अपने बॉडी का, सैलामेंडर अपने बॉडी का कलर जो है स्टोन का जो कलर था ब्राउन, उसके जैसा कर लिया। तो इससे इसको क्या फायदा मिला, शिकार होने से ये बचा। आवाज आ रही है, समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है। अब आप देखो, रिलीज ऑफ ऑर्डर, गंध निकालता है एनिमल्स, कहां से? ओपनिंग से, जो उसका यूरिनोजेनाइटल ओपनिंग है वहां से गंध निकालता है और पैर पर छिड़क देता है, आप देखे होंगे। और इससे वो बाउंड्री का निर्माण करता है, यहाँ मेरा इलाका है, अपना अपना ऑर्डर छोड़ दिया, उसके इलाके में कोई सेम स्पीसीज का दूसरा एनिमल आएगा या कोई डिफरेंस, उसको ये भगाएगा वहां से। सो फ्रॉम वेयर द टर्म इथोलॉजी कम्स, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, सबसे पहले इस टर्म को किसने क्वाइन किया? तो इसका नाम है भाई साहब का निको टिनबर्गेन। क्या नाम है? निको टिनबर्गेन। निको टिनबर्गेन जो था ये डच जूलॉजिस्ट था। डच मतलब समझ लो नीदरलैंड, हॉलैंड, यूरोप में है। और 1950 में इसने टर्म दिया, बाद में इसको नोबेल प्राइज भी मिला। He has given the term ethology. So ethology term was first mentioned in the French publication during 18th century. However, the term of the ethology was first correctly coined by the Nico Tinbergen in 1950. पहले ये यूज किया जाता था 18th सेंचुरी में फ्रेंच पब्लिकेशन, लेकिन इस वर्ड को करेक्टली डिफाइन किया गया इसके द्वारा 1950 में, दैट दिस इज द साइंस or this is the branch of zoology where we study the behavior of the animals. Why it is necessary to study ecology? The question arises. क्यों पढ़ना जरूरी है? Because animals are inevitable part of our daily life. हमारे दैनिक जीवन का ये एक अभिन्न हिस्सा है। जानवर जैसे दूध आप रोज पीते हो, गाय का दूध, भैंस का दूध आपके बच्चे पीते हैं, अगल बगल मिठाई खाते हो, तो आप क्या करोगे? गाय भैंस को पालोगे। तो गाय भैंस को पालोगे या कोई पालेगा, डेयरी में उसका पालन होगा, तो क्या जरूरी है? उसका बिहेवियर कैसा है, कब उसको भूख लगता है, कब उसको प्रजनन करना है, कब उसको बीमारी हो गया, कब रो रहा है, कब वो दर्द में है, कब करा। तो इस तरह का उसको पूरा उसके जो उसको पालेगा, जो उसका पालक है, उसको उसका सब चीज का ध्यान रखना है, इसलिए उसे जानना जरूरी है उस एनिमल का बिहेवियर के बारे में। सो एनिमल्स आर इनएविटेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, सो स्टडी ऑफ देयर बिहेवियर मेक्स इट इजी फॉर अस टू अडेप्ट विद देम। तो उस एनिमल के साथ हम लोग आसानी से रह सकें, चाहे घोड़ा पालो, चाहे हाथी, गधा, घोड़ा, जो भी एनिमल पालोगे तो उसका आपको जानना है कि बिहेवियर क्या है। अगर हिंसक पशु है वो हिंसा करेगा, मारेगा, कोई मरखंडा बैल है तो उसको नहीं पालता है, निकाल देता है, ठीक है। तो अगर उसका बिहेवियर खराब हो गया, एनिमल का नहीं सुधर रहा है, तो उसको बाहर कर दोगे अपने बारे से। अब लायन है, लायन हिंसक जानवर है, वो कार्निवोरस है, वो खा जाएगा, तो आप क्या करोगे? उसको पिंजरा में बंद करके पालोगे, चिड़ियाघर में, ओके।
बाहर खुले में नहीं रखोगे। तो इस तरह, इस वजह से अब किसी को नहीं पता है लाइन, अगर कार्निवोरस से बाहर खुला छोड़ देगा तो उसको अपना जीवन का हाथ धोना पड़ेगा। तो दिस इज, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं, सो उनके बारे में जानना जरूरी है। कैटल ब्रीडिंग में अभी बताए, कैटल ब्रीडिंग, कैटल में कौन कौन आता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट, ठीक है, याक, जिससे भी दूध आप निकाला जाता है। ओके, ये सब आ गया कैटल में। पोल्ट्री, पोल्ट्री मतलब मुर्गी पालन, पिगरी सूकर पालन, फिशरी मछली पालन, एपीकल्चर, हनी बी, हनी बी की, एपीकल्चर यानी आपका आपका हनी बी। हाँ, मधुमक्खी पालन। सब ये सब व्यवसाय में, अगर आप पशु पालन करो, चाहे मुर्गी पालन करो, सूकर पालन, मछली पालन, तो ये सब में क्या है, आप एनिमल का ही पालन पोषण कर रहे हो। तो इसके लिए भी आपको जरूरी है, ताकि आप इसमें फायदा कमा सको अच्छा से, अगर आपको एनिमल के बिहेवियर के बारे में अच्छा से पता होगा। क्लियर? अब व्हाई द थर्ड एस्पेक्ट इज व्हाई the knowledge of insect and rodent pest behavior helps us in preventing the damage to the crops. क्रॉप को डैमेज करता है कौन कौन? इंसेक्ट और रोडेंट, चूहा और कीड़ा जो है क्रॉप को, हमारे फसल को खाता है, नष्ट करता है। तो अगर हमको उनका बिहेवियर के बारे में पता रहेगा तो हम रोकथाम कर सकेंगे। जैसे चूहा कब निकलता है अनाज खाने के लिए? रात में निकलता है ज्यादातर, ठीक है। तो कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाए जिसमें रात से में चूहा भागे, दिन में तो निकलता नहीं है खाने। तो इस तरह से पेस्ट को कंट्रोल, क्या उसका मेटिंग बिहेवियर है, कैसे हम चूहे के प्रजनन को रोकें ताकि हम डैमेज को कंट्रोल कर सकें। तो ये सब सारा स्टडी जो है करने की आवश्यकता है। फिर जू हो गया, चिड़ियाघर, अम्यूजमेंट पार्क में ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अम्यूजमेंट पार्क क्या होता है? छोटा सा पार्क होता है अम्यूजमेंट पार्क, बच्चों के खेलने मिलने के लिए, जिसमें ज्यादा हिंसक जानवर नहीं, छोटे मोटे टाइप का जानवर, जैसे घोड़ा उड़ा का हॉर्स राइडिंग करा दिया, एलिफेंट एक रखा हुआ है, रस्सी पकड़ के उस पर बच्चा को चढ़ा दिया। तो अम्यूजमेंट पार्क उस टाइप का होता है। जूलॉजिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन क्या होता है आपका? इसमें मैक्सिमम एनिमल्स को रखा जाता है जो कि आपका एनिमल किंगडम से बिलोंग करे, और ये सब का अपना अपना हैबिटेट का छोटा सा हैबिटेट बनाया जाता है। जैसे क्रोकोडाइल है तो छोटा सा पॉन्ड बनाया जाएगा, उसमें रखा। चिंपांजी है तो बड़ा सा पिंजरा के अंदर एक पेड़ रहेगा जिसमें 2-4 चिंपांजी लटके रहेंगे। शेर है तो उसके लिए गुफा बनाई रहेगी, फिर पिंजरा रहेगा। तो इस तरह से ये सारा अरेंजमेंट किया जाता है ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स को हम प्लेस कर सके फॉर द नॉलेज पर्पस। और अम्यूजमेंट पार्क क्या है? फॉर देयर राइडिंग एंड एंटरटेनमेंट पर्पस और एडवेंचर पर्पस। ओके, अम्यूजमेंट पार्क में हिंसक जानवर नहीं होगा, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? यहाँ पर जैसे फॉरेस्ट में, रियल लाइफ फॉरेस्ट है, वहां पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। इतना दूर का इलाका घोषित कर देता है सरकार की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर वाइल्ड लाइफ रहेगा, यहाँ कोई शिकार नहीं कर सकता है, कानून रहता है वहाँ वाइल्ड लाइफ का। ओके, सो ऑल दिस type of places also demand for a thorough knowledge of the ethology. Okay, so animals are part of our environment. Their behavioral studies provide us with a better management of environmental issues also. Environmental issues को टैकल करने के लिए भी, बढ़िया से टैकल करने के लिए भी हमको एनिमल बिहेवियर का स्टडी होना जरूरी। जैसे अगर ग्रास लैंड है तो हमारे पास ग्रास ईटिंग, ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स ज्यादा हो गया, अगर उस इलाका में तो ग्रास खत्म हो जाएगा, ग्रेज कर गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उस इलाके से ग्रास ग्रेजिंग एनिमल्स को ट्रांसफर कर देंगे दूसरी तरफ। Now the question is, why do animals behave? As I have already told you, animal behaves because they are living. Okay, a living system can respond to a stimulus and, ठीक है, a non living system cannot respond to a stimulus.
A living system can only respond to a stimulus, जैसे heat, light, temperature, okay, different kinds of stimulus होगा, उसमें living system will respond. So animal behave because they are living, okay, and because they are living, they respond. Any living system respond to the stimulus. For example, if you place a food particle near an amoeba, it will move towards it, and if you place a drop of acid, it will move away from it. अगर उसका favorable substance उसके मनचाहा पदार्थ रख दिए तो उसकी तरफ वो जाएगा, अगर उसका गड़बड़ चीज रख दिए तो वो उससे अवे हो जाएगा. Same way, all animals behave to fulfill their essential needs. In summary, animals behave to get food, get space or shelter, and to reproduce. एनिमल का 3 बेसिक काम क्या है? खाना जमा करना और रहने का स्थान का इंतजाम करना और प्रजनन करना. ये 3 मेन काम के लिए सारे एनिमल्स जो हैं उनका बिहेवियर जो है उस बेनिफिट को प्राप्त करने के लिए चेंज होता है. अगर कहीं पर खाना कम है और वो एनिमल ज्यादा हो गया, okay, if the supply of food is limited, then there will be the competition among the animals in that area. If the supply of food is limited in that area, then there will be competition. There will be frequent fight among the animals to get the food. So all these 3 basic things, they are the major determinants of the animal behavior. So, as ethology is a branch of zoology in which many other aspects of science also, other branches of science also merge. Suppose if you are studying the behavior of animal on the basis of their geneticity, if the behavior of the particular animal is because of the gene, okay, then we term it as ethogenetics. So there is further subdivision in this science, this part of zoology. So this is the branches of ethology. क्या branch है इसका? The science of ethology is considered relatively new, and it had been studied extensively only in last 50 years. तो अभी ये 50 years नहीं लिखना, अभी 70 years लिखना, क्योंकि 2020 चल रहा है, ये पहले का लिखावट कहीं से हम कॉपी पेस्ट किए हैं. ओके, तो इसको 70 कर लेना, क्योंकि 1950 में आया था, अभी 70 साल हो गया. However, it is difficult to interpret animal behavior without considering factors that stimulate the behavior. तो हमको वो सारे फैक्टर्स जो हैं कंसीडर करने पड़ेंगे जो कि बिहेवियर को स्टिमुलेट करता है, यानी वो स्टिमुलेंट्स जिसकी वजह से बिहेवियर डिसाइड होता है, गवर्न होता है. So ethology is studied in association with various other sciences, which gives rise to various branches of ethology. So how we do it? What are the other branches of ethology? पहला तो है when we study ethology in relation with the ecology, and that branch is called ecoethology. Ecoethology, ecology plus ethology, eco plus ethology, ecology and ethology. Yani ecoethology is the study of relationships between the behavior of an individual species and its relation to other living and non-living components of the environment. Suppose
if in a forest the supply of food for a lion is gets depleted, then the lion will migrate from that forest to another area. Suppose if supply of food is gets reduced for an animal which depends on the grass, so all these things are part of the ecosystem. So if there is a change in the ecosystem, then how the behavior of the animals which are dwelling in that ecosystem changes. उस इकोसिस्टम में रहने वाले एनिमल्स जितने भी हैं उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है अगर इकोलॉजी में परिवर्तन आया तो, इकोलॉजिकल चेंज आया तो उसको दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज इको-इथोलॉजी, यानी द चेंज इन इकोसिस्टम, एंड बिकॉज ऑफ दैट चेंज व्हाट इज द चेंज इन द बिहेवियर of the animals in that area. So that comes under eco-ethology. The second one is ethophysiology. इसको हम लोग behavioral physiology भी कभी कभी कहते हैं, behavioral physiology, science of behavioral physiology, यानी ethophysiology. When we study the behavior in relation with the physiology, यानी etiology and the physiology, means what is the physiological basis of the behavior. Yani ethophysiology is the branch of ethology that deals with the physiological basis behind the animal behavior.